Hello everybody, welcome to the channel. I am Ayushi and in this video I'm going to tell you guys the life at Delhi University or University of Delhi में life होती कैसे मैं सब बताऊंगी. Okay, now the very first thing we'll discuss about is your background, the basic background about the life. उसके बाद हम जाएंगे about the hostels, then your events, then your classes, then what do you call it, internships, societies, fest, everything. Okay, now very first I'm going to tell you about the background. Okay, now Delhi University life is very chill. In fact, it is quite chill that people have so much time that they can even start up something along with their degree they're pursuing at Delhi University, and many people have many startups are there which are started in just while getting graduate from Delhi University, while getting a very first degree, okay, of a career. Okay, now this is the kind of life. So basically you have once you enter Delhi University, this is a fact that you have time. Now how much you utilize that time and how much you make out of it totally depends upon the person. Okay, totally depends upon you, and everything would be there. Okay, many restrictions and many distractions would be there, but it totally depends upon you how you would just frame the entire thing for yourself. Okay, and after you get out of the college, what you guys would be having on your CV or what you guys would be having on your personality, that totally depends upon you. Okay, so let's get started with the video. Okay, I mean the main points, not the video. We have already started with the video. Okay, now the very first thing is your classes. Now if I tell about my classes now, that is from a maths honors perspective, and I was in Sri Venkateshwar College, Venki. So basically I used to have for the first 2 years, that is first year and second year, your Saturdays would not be off, so you will have working Saturdays now. So you need to go to college from Monday to Saturday. Okay, now in your third year the Saturdays are off, so only working days are Monday to Friday. Okay, now the very first 2 years, the first year is okay kind of year. Second year is tough because your core subjects increases, and your third year it is quite chill. It is very chill, and even it is like many people don't attend classes only in the third year. Okay, now if I tell about the classes, the timing, so in your very first year classes start from as early as 8:30 to 9, and they go on till 3-4. Okay, in your first year. Similarly with second year they go till 4 and sometimes 5 also, because this schedule is because of course you will be having certain kind of breaks in between, but the most important thing of this extended schedule is your practicals. So practicals is of 2 hours, 2 lengthy hours, and therefore these classes get extended like this. Okay, and in the third year the schedule would be like starting from 8:39. It would just start between 8:30 to 9. That is somewhat my classes used to start at 8:45. So in our college it was a system of 8:45 to 9:45, 9:45 to 10:45. That was the system. Okay, and they end up till 1-2 in your what do you call it, last year. So this was the classes seen for the maths on student. Okay, science student है तो क्लासेस तो होंगी सुबह आप 8:45 से, मेरी होती थी 8:45 से लेकर 4 बजे तक. ओके, तो क्लासेस तो होंगी और क्लासेस बहुत होंगी. इट डिपेंड्स अपॉन यू कैसे क्लासेस से टाइम निकालना है. बाकी चीज़ों में अगर आपको इन्वॉल्व होना है, पार्टिसिपेट करना है, तो कैसे करना है वहाँ पे डिपेंड करता है. ओके, दिस इज अबाउट द क्लासेस. नाउ कमिंग टू द हॉस्टल्स. ओके, नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स तो है, सबको पता है. ठीक है, अब हॉस्टल्स साउथ कैंपस में नहीं होंगे. साउथ कैंपस में हमारे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में, मेरे कॉलेज वेंकी में हॉस्टल है, लेकिन हॉस्टल में बहुत कम सीट्स है. 1 या 2 सीट्स होंगी पर कोर्स के लिए. ओके, बट उसके लिए यू नीड टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स. ओके, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ओनली. जो आपका एडमिशन होता है कट ऑफ पे, उसमें अगर सपोज बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स है देन आपको वो सीट मिलेगी. क्योंकि वेंकी में मतलब बेसिकली सिर्फ 1 या 2 ही सीट्स होती हैं हर कोर्स के लिए. सो जैसे कि एक सीट गर्ल के लिए, एक सीट बॉय के लिए. दैट्स हाउ इट गोज. ठीक है, सो मार्क्स पर डिपेंड करेगा. अगर आपको आगे चाहिए पूरा सेकंड या थर्ड ईयर के लिए, तो वो पूरा आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है. हर सेमेस्टर यू हैव टू स्कोर वेल, अदरवाइज यू विल बी किक्ड आउट. ओके, नाउ दिस वाज अबाउट दैट. नाउ साउथ कैंपस में कम हॉस्टल्स होते हैं. आई थिंक लेडी श्री राम कॉलेज में, वेंकी भी 2 ही कॉलेजेस में हमारे हॉस्टल्स हैं. साउथ कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में तो मिल जाएंगे हॉस्टल्स. ठीक है, तो बाकी देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर अदर ऑप्शंस लाइक पीजी एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, नाउ दिस वाज अबाउट द हॉस्टल्स. एंड थर्ड इज योर फेस्ट. ओके, नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी में every year there is a college fest, and every year there are numerous of department fest. Okay, so एक आपके डिपार्टमेंट का होगा, बाकी बहुत सारे कॉलेज में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके फेस्ट होंगे. तो फेस्ट तो बहुत ही होते हैं, पूछ समझ के तो फेस्ट होते हैं. और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपने इतने कॉम्पिटिशन के बाद एडमिशन लिया, आपने फेस्ट नहीं इंजॉय किया, सोसाइटीज में पार्ट नहीं लिया, या फिर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं किया, तो आपने क्या किया? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ने तो नहीं आए हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई तो होती नहीं है. इनफैक्ट पढ़ाई के अलावा सब कुछ ही होता है. ओके, दिस वाज अबाउट द फेस्ट. नाउ कमिंग टू इवेंट्स एंड
सेमिनार्स. इवेंट्स कितने अच्छे होंगे, सेमिनार्स कितने अच्छे होंगे, डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे. ओके, जितना अच्छा कॉलेज उतने ज़्यादा अच्छे और रेगुलर इवेंट्स और सेमिनार्स होते हैं एंड बहुत अच्छे होते हैं. इतना कुछ सीखने को मिलता है, उतना तो एक्सपोजर होता है जितना अच्छा कॉलेज होता है. ठीक है, सो द इवेंट्स और सेमिनार्स का होता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सोसाइटीज़ की जहाँ तक बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको हर टाइप ऑफ सोसाइटी मिलेगी. नाउ डांस सोसाइटीज़ होंगी. डांस सोसाइटीज़ में हर काइंड ऑफ डांस, यू विल गेट वेस्टर्न, यू विल गेट ट्रेडिशनल. देन योर म्यूजिक सोसाइटीज़, म्यूजिक में भी दोनों होते हैं. ठीक है, देन योर फैशन सोसाइटी, आर्ट्स मिल जाएगा, आर्ट सोसाइटी मिलेगी आपको. देन फोटोग्राफी सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी. ठीक है, देन ड्रामा सोसाइटी, क्विज सोसाइटी. देन आप और बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ही, एक तो आपकी सोशल सर्विस सोसाइटी होती है NSS, जिसका पार्ट बनना बहुत अच्छी बात होती है. एक होता है प्लेसमेंट सेल और एक होता है इनएक्टर्स. तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती हैं. कुछ इनएक्टर्स तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. ठीक है, सो ये आपकी सोसाइटीज़ होती हैं. इसके अलावा भी कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा. ये वाली सारी सोसाइटीज़ मेरे कॉलेज में तो थी. फैशन सोसाइटी नहीं थी, और उसके अलावा तो सारी सोसाइटीज़ थी मेरे कॉलेज में. तो बहुत सी सोसाइटीज़ होती हैं. ड्रामा में भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ड्रामा मिलेंगे. डिबेटिंग सोसाइटी भी होती है, मैं भूल गई थी. डिबेटिंग सोसाइटी भी होती है. तो ये बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. हर कॉलेज में कुछ कुछ होती हैं. ये वाली मेरे कॉलेज की थी एक्सेप्ट फैशन. ओके, सो दिस वाज अबाउट द सोसाइटीज़. एंड कमिंग टू इंटर्नशिप्स. ओके, नाउ इंटर्नशिप्स क्या होते हैं. हाँ, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग द एंटायर थिंग फॉर इंटर्नशिप्स. एवरीथिंग अबाउट इंटर्नशिप्स आई मेक अ सेपरेट वीडियो. बट जहाँ तक बहुत जो आपकी कॉलेज की इंटर्नशिप होती है वो होता क्या है कि कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होता है, वो आपके लिए इंटर्नशिप अरेंज करता है. बेसिकली वो एक मीडिएटर बनता है कंपनी और आपके बीच में. सो यू हैव टू अप्लाई एंड बाकी सब कुछ पूरा प्रोसीजर से जाना पड़ता है इंटर्नशिप लेने के लिए. नाउ इंटर्नशिप्स आप जो इन ऑफिस इंटर्नशिप होती हैं जो कि एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल होती हैं. You can do that internship with your summer breaks. Okay, now summer vacations 3 बार आएंगी. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों बार घर में आएंगे, तीनों बार समर वेकेशन आएंगी. एंड तो समर वेकेशन अच्छी खासी होती हैं, 2 महीने की होती है. तो यू कैन अच्छे से डू 2 month internship out there in office internship. Now coming to the virtual internships, that you can do it in like at any time during those 3 years. At any time you can do the virtual internship. Now there is a winter break, but that break is only for 15 days. So if you want to do an internship, so internship is a minimum of 1 month. If a employer is giving you an internship of minimum 1 month, then winter break is of 15 days only. Okay, in December after your exams there would be a break from 15 December to 31st December. Okay, so what you can do is you can just go to that internship till 15th of January. So for 15 days basically classes तब तक शुरू भी नहीं होती अच्छे से, तो फर्स्ट वीक आपका क्लासेस का मिस होगा. That's quite okay. So that was about that. इंटर्नशिप्स. या सो बेसिकली मेरे को आई थिंक दैट बहुत से पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है, बट बहुत चल होती है. सो बेसिकली सुबह से क्लासेस होती हैं, क्लास शुरू हो जाती है. अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ना भी है कॉलेज में, बाकी सब कुछ भी करना है, वो कॉलेज के साथ मैनेज करना है पढ़ाई, तो आपकी स्टार्ट हो जाती है सुबह से कॉलेज की क्लासेस. ठीक है, और अगर मतलब डिपेंड करता है कि कब खत्म हो रही है, बट अगर हो भी रही है, लेट खत्म हो रही है, 3 बज रहे हैं, देन आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर योर सोसाइटी वर्क. आई मीन द सोसाइटीज एंड जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं फॉर दैट. बाकी रिगार्डिंग द इंटर्नशिप कैन बी मैनेज वेरी इजिली, एंड आई हैव डन सेवरल इंटर्नशिप्स during those 3 years. So internships could be managed easily. I'll make a video if you want on that, how to manage your internships, extracurriculars along with your academics. Okay, so basically this was all about this video. I hope that you must have got some idea about the IFAT DU, and if you have any doubts then do comment in the and I'll answer the comments. Okay, till then, bye.